Hello children, welcome to class 1 computers. Children, in our previous video we were doing chapter 4, that is places where computers are used. So children, what do you mean by the topic children? The topic means all those places where we use computer. So children, is there any place where we do not use computer? No. Children, every field of life we are using computer, whether it is home, office, school, shopping mall, small shops, bank, hospital, designing purpose, airport, railway station, everywhere we have computers. So children, nowadays computer has become a part of our life. In our day-to-day life, we are, for each and everything we are using the computers. तो कोई भी काम हो बिना कंप्यूटर के पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उन सारी चीज़ों के बारे में, उन सारे प्लेसेस के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर वेयर वी यूज कंप्यूटर. सो चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था पिछले वीडियो में. Let us read the chapter and try to understand. So children, in this chapter we are going to cover the topics uses of computer at different places. So कंप्यूटर का अलग अलग जगहों पर यूज. उसके बाद what are these places? These are at school, in the office, at home, at shop, in hospital, in bank, at railway station and airport. So these are the places where we are going to read what are the uses at these places and how these computers are helpful. So children, hello kids, once again we'll meet Lappy. Lappy will be telling all about the uses of computer at different places. Now children, Lappy says, hello kids, you know that a computer can do many tasks. So children, first word which we come across, I think you may not be knowing, task. What does task mean? Task means work, यानी काम. तो कंप्यूटर का पर्पस ही है काम करना. कंप्यूटर बना ही है काम करने के लिए. तो दैट इज वाई वी कैन से कंप्यूटर्स डू लॉट ऑफ टास्क और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क. टास्क मीन्स वर्क, काम. टास्क का मतलब होता है काम. तो जो कंप्यूटर होते हैं बहुत सारे काम करते हैं और अलग अलग तरह के काम करते हैं और इस काम को ही हम टास्क कहते हैं. नाउ चिल्ड्रन, for doing all these tasks it is used at different places. क्योंकि ये अलग अलग तरह का काम करता है इसलिए अलग अलग जगहों पर पाया जाता है और इन्हीं सारे कामों को करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं. Now it will tell you the places where computers are used. Now I will means the Lappy will tell you what are the will tell you about the different places where computers are used. तो यहाँ पे हमें Lappy उन सारे जगहों के बारे में बताएगा जहाँ जहाँ हम कंप्यूटर का यूज करते हैं. Now children, firstly and most important place where we use computer. So children, the first place where we use computer is our school. We all know that it is the most important place where we have many or different types of work done at the school. So let us see what are these works children. तो सबसे पहला प्लेस जहाँ पे हम कंप्यूटर का यूज करते हैं at school, that is at school. तो can you tell me children what are the works which we do at school? So सबसे पहले टीचिंग एंड लर्निंग, पढ़ने और पढ़ाने का काम करते हैं. सबसे पहली चीज़ है टीचिंग और लर्निंग. हम पढ़ने और पढ़ाने का काम करते हैं. टीचर्स टीचेस विद कंप्यूटर एंड स्टूडेंट्स यूजेस द कंप्यूटर फॉर लर्निंग. तो यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ लिखेंगे टीचिंग, TACH, टीचिंग स्टूडेंट्स, टीचिंग द स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स. तो सबसे पहला काम है टीचिंग द स्टूडेंट्स, बच्चों को पढ़ाने के लिए. देन सेकेंड हमारा हो गया कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर. एज वी नो चिल्ड्रन कि किसी भी ऑफिस में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी स्कूल में, स्कूल एक तरह का इंस्टीट्यूशन है तो कहीं पे भी वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं और स्कूल में तो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं और जो लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल टीचर्स है, क्लर्क, ऑफिस स्टाफ है या फिर हमारे ग्रुप डी स्टाफ है जो कि पूरे स्कूल का साफ सफाई करते हैं, दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो इन सारे लोगों के बारे में
पूरी डिटेल हम कंप्यूटर में रखते हैं। सो जो भी हमारे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूशन में काम करता है उसकी डिटेल वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन रखता है। तो स्कूल भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं। दीज आर द एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्कूल। तो उनका पूरा डिटेल एंड इवन द डिटेल ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चे जो पढ़ते हैं उनका भी डिटेल हम कंप्यूटर के थ्रू ही मेंटेन करते हैं। तो कोई भी ऑफिस हो, स्कूल हो या ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे बहुत लोगों का आना जाना लगा हो या फिर काम करते हैं, तो उनका पूरा डिटेल रखा जाता है। तो दैट डिटेल इज मेंटेन्ड विद द कंप्यूटर रूम। तो यहाँ पे भी कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स, कीपिंग KEEPING, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ टीचर्स as well as students। चलिए पहले स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स Now next one children, keeping record of students and teachers. So children, keeping record of student and the teacher, keeping record of students and the teacher. So the computers are used for keeping records of students and the teachers. Then next work which we do using the computer at schools is children preparing test papers. Preparing test papers. Preparing TEST, test, PAPER, paper. Preparing test paper and examination result. Paper and examination result. Then children, next, keeping record of fees collected from the students. Keeping record, RECORD, record of fee, keeping record of the fee collected from the students. So हम इतना से समझ में आ रहा है। Other than these children, we also use computers in the libraries. Other than these children, we also use computers in the library for keeping record of the books which are present in the library. Then other than these children, principals use for sending mails and receiving mails, and office staff also use for sending mails and receiving mails from the other रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इससे रिलेटेड स्कूल्स हैं या और भी जो भी स्कूल को चलाते हैं, उन लोगों से जितने भी मेल्स आते हैं, इंफॉर्मेशन आते हैं, उन सारे को उनके मेल रिसीव और सेंड करने के लिए वी यूज़ कंप्यूटर. सो चिल्ड्रन, द फर्स्ट प्लेस वेयर वी यूज़ कंप्यूटर इज एट स्कूल. आप सभी जानते हो स्कूल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेस वेयर वी यूज़ कंप्यूटर्स फॉर डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क. स्कूल ऐसा जगह है जहाँ पे हम कंप्यूटर्स को यूज़ करके बहुत सारे काम करते हैं. सबसे पहले बच्चों, हम जैसा कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, टीचिंग द स्टूडेंट्स. कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर टीचिंग एंड स्टूडेंट यूज फॉर लर्निंग. स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं फॉर प्रैक्टिकल वर्क एज वेल एज दे गो टू द कंप्यूटर लैब्स फॉर डूइंग और फॉर परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज़. कंप्यूटर को यूज़ करके बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर उस पर प्रैक्टिस करते हैं. तो इवन स्टूडेंट यूज़ द कंप्यूटर्स फॉर लर्निंग. देन चिल्ड्रन, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स. आप सभी जानते हो, मैंने भी आपको बताया कि किसी भी प्लेस में जैसे स्कूल ही देख लो, वहाँ पे पढ़ने वाले भी होते हैं और पढ़ाने वाले भी होते हैं और बाकी के भी स्टाफ होते हैं. तो जितने भी स्टाफ होते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे और भी सारे स्टाफ जो होते हैं, वो सारे लोगों का रिकॉर्ड रखने के लिए भी वी नीड कंप्यूटर. तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, उन सारे का रिकॉर्ड वी कीप. हम उनका एड्रेस रखते हैं, फ़ोन नंबर रखते हैं और जितनी भी उनके डिटेल होते हैं we keep as a record in the computer. For that also we need computer. Preparing test paper and examination result.
तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वी नीड कंप्यूटर्स फॉर प्रिपेयरिंग टेस्ट पेपर। जितने भी आपके टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उससे रिलेटेड पेपर्स जो हम बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर्स, वो भी हम कंप्यूटर से बनाते हैं। वी यूज़ कंप्यूटर्स फॉर फीडिंग मार्क्स एज वेल एज वी नीड कंप्यूटर्स फॉर प्रिपेयरिंग द रिजल्ट. It is also one of the important work which we do using the computer in schools. Then children, keeping record of the fees. फीस का रिकॉर्ड रखने के लिए भी वी नीड अ कंप्यूटर. तो जो भी स्टूडेंट्स फी पे करते हैं उसके लिए भी वी नीड अ कंप्यूटर. अदर देन दीज चिल्ड्रन, एज आई टोल्ड यू, इन स्कूल्स वी यूज कंप्यूटर इन द लाइब्रेरी ऑल्सो. देयर वी हैव द बुक्स एंड बुक्स का भी रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, इसलिए उसके लिए भी हम कंप्यूटर रखते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी डू यूजिंग द कंप्यूटर्स एट स्कूल्स. नाउ चिल्ड्रन, लेट अस फाइंड teaching, T-E-A-C-H-I-N-G, teaching, T-E-A-C-H-I-N-G, teaching. So children, teaching, T-E-A-C-H-I-N-G, teaching. उसके बाद we have keeping records, K-E-E-P-I-N-G, keeping, रखना, R-E-C-O-R-D-S, records. रिकॉर्ड किसका? स्टूडेंट्स और टीचर का, यानी कि डिटेल, उनकी जानकारी, उनके बारे में जानकारी रखना. जो भी हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, जो टीचर काम करे उनकी भी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, तो उनका भी रिकॉर्ड रखना. K-E-E-P-I-N-G, keeping, R-E-C-O-R-D-S, records of students, S-T-U-D-E-N-T-S, students, and the teacher, T-E-A-C-H-E-R-S, teachers. Preparing यानी बनाना, प्रिपेयरिंग यानी बनाना, P-R-E-P-A-R-I-N-G, प्रिपेयरिंग, T-E-S-T, टेस्ट, पेपर, P-A-P-E-R, पेपर. फिर एग्जामिनेशन, E-X-A-M-I-N-A-T-I-O-N, एग्जामिनेशन. रिजल्ट, R-E-S-U-L-T, रिजल्ट. रिजल्ट सिर्फ स्कूल्स में ही प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि स्कूल्स में ही एग्जाम्स होते हैं और उसी से रिलेटेड रिजल्ट बनते हैं. तो वी प्रिपेयर रिजल्ट्स इन द स्कूल इटसेल्फ. कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ द फी. अब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको फीस भी डिपॉजिट करनी होती है, तो उसका भी रिकॉर्ड, किसने जमा किया, किसने नहीं किया, किसने डिपॉजिट किया, किसने नहीं किया, इसका रिकॉर्ड भी हम कंप्यूटर से रखते हैं. तो हियर once again keeping record of the fee, F-E-E, fee. So these are the work which we do at a school. Now children, our second places where we have computer, that is at home. This is another important place children. Nowadays at home also we do lot of things using the computer. It has become an important part of our house also. घर में भी, पहले हम घरों में इतना हमें ज़रूरत नहीं होती थी कंप्यूटर की, लेकिन लॉकडाउन के बाद और भी थोड़े बहुत काम हम पहले करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद ये एक एसेंशियल चीज़ हो गई, मतलब कि ये ज़रूरी सामान हो गया है. चाहे वो कंप्यूटर के फॉर्म में, मोबाइल के फॉर्म में आपके पास, एंड्रॉयड के फॉर्म में आपके पास कंप्यूटर हो, या फिर आपका वैसे कंप्यूटर हो, नॉर्मल कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, किसी न किसी वे में, किसी न किसी फॉर्म में आपके इस घर में भी नाउअडेज वी आर यूजिंग इट, स्पेशली आफ्टर द कोविड पेंडेमिक के बाद. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, वन ऑफ द एसेंशियल आइटम हो गया हमारे घर का. तो चिल्ड्रन, एट होम व्हाट ऑल वी डू यूजिंग द कंप्यूटर? तो एट होम, H-O-M-E, होम, एट होम the computers are used for the C-O-M-P-U-T-E-R, computers are used for, F-O-R, for, at home यानी हमारे घर पर the computers are used for. Firstly children, as you can see in your book, first thing is for attending classes. सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस. देन वी हैव फॉर डूइंग होमवर्क. आई हैव नॉट रिटन हियर बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन योर बुक, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई हैव टोल्ड यू. डूइंग, H-O-M-E, होम, W-O-R-K, होमवर्क, फॉर डूइंग होमवर्क, फॉर डूइंग अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लासेस, for doing homeworks, for sending homeworks online, receiving mails, sending mails,
ये सारे काम तो हमारे नए काम हैं। इससे पहले हम ये सारे काम नहीं किया करते हैं। हम स्कूल जाते थे, वहाँ हमको होमवर्क मिलता था, वी यूज टू डू द क्लास वर्क एंड ब्रिंग होमवर्क एट डू होमवर्क फॉर एट होम। लेकिन अब क्या है, अब ऑनलाइन क्लासेस करते हैं हम। ऑनलाइन क्लास करने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, और उससे रिलेटेड वर्क जो हम करते हैं उसको मेल करने के लिए, या टेस्ट पेपर मेल करने के लिए, या फिर ऑनलाइन टेस्ट अटेंड करने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। चाहे वो एंड्रॉयड के फॉर्म में हो, चाहे वो लैपटॉप के फॉर्म में हो, चाहे वो कंप्यूटर के फॉर्म में हो, तो हम कई तरह से हम इसको यूज़ करते हैं ना। सेकेंडली चिल्ड्रन, हमें अगर कोई प्रॉब्लम है होमवर्क करने में तो हम वो भी कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। देन प्लेइंग गेम्स, PLAYING, प्लेइंग, GAMES, गेम्स। अब गेम्स, प्लेइंग गेम्स इज अनदर वे ऑफ पासिंग टाइम और अम्यूजमेंट है, जिससे हम अपने आप को एंटरटेन करते हैं, हम अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, वी एंजॉय डूइंग दैट। तो हर वक्त तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते, और लॉकडाउन में स्पेशली हम घर से बाहर भी नहीं जा पा रहे थे, तो कंप्यूटर वॉज वन ऑफ द वेरी यूजफुल आइटम विच हेल्प्ड अस टू प्ले गेम्स, और होमवर्क करने में या क्लास करने में, ये सारे काम करने में कंप्यूटर ने हमारी काफ़ी मदद की। नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट थिंग इज लिसनिंग टू द म्यूजिक एंड वॉचिंग मूवीज। हम म्यूजिक भी लिसन कर सकते हैं, लिसनिंग टू द म्यूजिक and watching movies. हम गाना सुन सकते हैं, we use computer for listening to the music, watching movies and also for वॉचिंग कार्टून्स। अपनी मनपसंद, अपने चॉइस का कार्टून देखना है तो हम कंप्यूटर पे देखते हैं। देन लास्टली सर्फिंग द इंटरनेट। सर्फिंग द इंटरनेट का मतलब हुआ, अगर हमें कुछ भी डाउट है तो हम इंटरनेट से देख सकते हैं या ढूंढ सकते हैं। सर्फिंग, सर्च कर सकते हैं इंटरनेट। जब भी हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है, हमें नहीं इंटरनेट, सर्चिंग द इंटरनेट, इसे हम इंटरनेट सर्फिंग कहते हैं। अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती तो हमें आज किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम नेट पे सर्च कर लेते हैं या ढूंढ लेते हैं। सो इस तरह से चिल्ड्रन, दीज आर द वर्क विच वी डू यूजिंग द कंप्यूटर एट होम। वैसे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन फिर भी दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन वर्क विच वी डू एट होम यूजिंग द कंप्यूटर। फर्स्टली द कंप्यूटर, पहले एट होम, HOME, होम यानी घर। द कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर, घर पे कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स। सो चिल्ड्रन, जो भी होमवर्क हमको मिलता है हम कंप्यूटर से देख करके कर सकते हैं, हमें किसी और के पास पूछने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। और गेम्स खेल सकते हैं, वी कैन प्ले गेम्स, PLAYING गेम्स। लिसनिंग यानी सुनना, हम म्यूजिक सुन सकते हैं, LISTENING लिसनिंग टू द MUSIC म्यूजिक। फिर वॉचिंग यानी देखना, WATCHING वॉचिंग। मूवीज, MOVIES मूवीज। देन सर्फिंग द इंटरनेट, इंटरनेट सर्फिंग करना यानी कोई भी इंफॉर्मेशन पता करना या ढूंढना, इसे हम इंटरनेट सर्फिंग कहते हैं। तो दीज आर द टास्क विच वी कैन डू यूजिंग द कंप्यूटर एट होम। हम घर पे ये सारे काम कंप्यूटर से करते हैं। देन चिल्ड्रन, थर्ड प्लेस वेयर वी हैव कंप्यूटर्स इज एट ऑफिस। इसके अलावा ऑफिस में भी कंप्यूटर होता है, आपके फादर के ऑफिस में कंप्यूटर होगा और उसी से वो काम करते हैं। सो इन द ऑफिस एट, thirdly we have computers at office. So children, now this is about before pandemic. ये बातें पेंडेमिक के पहले की है। जो आपकी बुक है उसमें जो चीज़ें दी गई पेंडेमिक के पहले की है, लेकिन पेंडेमिक के बाद तो हमारा यूज़ और ज़्यादा हो गया और इलेबोरेट हो गया। तो इफ़ वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ऑल द यूजेस आफ्टर द पेंडेमिक, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कवर इन सच अ स्मॉल चैप्टर। लेकिन फिर भी अब ऑफिस वाला काम तो हम घर में करने लगे हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट थिंग कि
work from home is possible, has become possible only because of the use of computer. कंप्यूटर की वजह से ही हम घर बैठे अपना काम कर रहे थे, हमें घर से बाहर बिना निकले हमारा काम हो जा रहा था. At office, the computer is used for typing and printing documents, and children, storing official records, sending and receiving mails are another important task which we use in the office. So children, first work which we do in office is typing and printing. P-R-I-N-T-I-N-G, printing, typing and printing. Then secondly, we use computer for storing, S-T-O-R-I-N-G, storing official data or records, R-E-C-O-R-D-S, records, storing official records. Then thirdly children, we use computers for sending and receiving, R-E-C-E-I-V-I-N-G, receiving, sending and receiving email, M-A-I-L, email, sending and receiving email messages, sending and receiving email messages, M-E-S-S-A-G-E-S, messages. So children, in offices we use computer for typing and printing. In offices we use computer for typing and printing, storing official records, sending and receiving email messages. स्टोरिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड मतलब ऑफिस से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसको स्टोर करना, फिर सेंडिंग यानी भेजना, एंड रिसीविंग यानी कि उसे पाना, ईमेल एंड मैसेजेस. तो ऑफिस में, स्कूल में, हर जगह हम आजकल कोई भी मैसेज कहीं और भेजना है तो मेल के थ्रू भेजते हैं, तो उसे भेजने में भी ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है. तो नाउअडेज चिल्ड्रन, इन ऑफिसेज ऑल्सो वी आर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, या हमेशा से हम ऑफिसेज में भी मैसेज सेंड और रिसीव करते थे, तो ये काम भी हम ऑफिस में करते हैं. तो चिल्ड्रन, फर्स्ट टास्क इज टाइपिंग एंड प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट्स, स्टोरिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल मैसेजेस. तो ये सारे काम हैं जो हम ऑफिस में करते हैं विद द यूज हेल्प ऑफ कंप्यूटर. नाउ आफ्टर दैट चिल्ड्रन, फोर्थ प्लेस वेयर वी हैव कंप्यूटर्स is fourth place where we have computer is at shop. At shop children, can you say what we do using the computer at shop? So children, at shop we use computer for making and printing bill. Shop में for making and printing, P-R-I-N-T-I-N-G, making and printing bills, B-I-L-L-S, bills, making and printing bills. In offices we use computer for making and printing. Children, at shops we need computers for making and printing bills. Secondly children, we need computers for keeping a record of the stock, for keeping a record of the stock. Children, what do you mean by stock? Keeping the record of the stock. What do you mean by record children? Stock children, stock का मतलब होता है सामान जो आता है, जो जितना भी सामान शॉप में आता है उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं, कितना आया, कितना बिका, कितना बचा है, ये सारा स्टॉक रखते हैं. सो चिल्ड्रन, डिटेल रखते हैं, तो इसे हम स्टॉक कहते हैं. मेकिंग एंड प्रिंटिंग बिल, जब हम शॉप में जाके सामान खरीदते हैं तो उसका बिल बनता है और फिर उसका प्रिंट निकलता है. दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. टाइप करते हैं पहले जो भी चीज़ें सामान लेते हैं, थिंग्स लेते हैं, और उसके बाद उसका प्रिंट निकालते हैं. दैट इज with the help of computer only. Then children, keeping a record of the stock. स्टॉक का रिकॉर्ड रखने के लिए, जो भी सामान आता है, बिकता है, बचता है, वो पूरा स्टॉक का डिटेल रखने के लिए भी वी नीड अ कंप्यूटर. तो इन द शॉप ऑल्सो वी नीड कंप्यूटर
there we use computers for making and printing the bill, and for children keeping the stock also we need computer. So ये काम हम कंप्यूटर को यूज़ करके शॉप्स में करते हैं. तो शॉप, छोटी शॉप हो, बड़ी शॉप हो, मॉल्स हो, एवरीवेयर यू कैन फाइंड कंप्यूटर नाउअडेज. तो जहाँ पे भी आप देखोगे हर जगह आजकल कंप्यूटर होता है. देन चिल्ड्रन, नेक्स्ट प्लेस वेयर वी हैव कंप्यूटर इज हॉस्पिटल. दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट प्लेस वेयर वी नीड कंप्यूटर्स. सो चिल्ड्रन, हॉस्पिटल में भी हमें बहुत सारे काम होते हैं कंप्यूटर के. फॉर एग्जाम्पल, इन द हॉस्पिटल, दिस इज 4th place I think. This is, yes, 5th place, na? This is 5th place. At hospital, at HOSPITALS, hospital. At hospital. So children, hospital is another place where we need computer. So in the hospital, children, the computers help doctors to diagnose the diseases. तो first में हम लिखेंगे the in hospital the computers are used to for, first one is for helping doctors helping the doctors DOCTORS, doctors, to helping the doctors to diagnose the diseases. तो आप जानते हो कि डॉक्टर का मतलब है टू फाइंड आउट द डिसीजेस. डॉक्टर का काम होता है डिसीज फाइंड आउट करना. इफ समबडी इज गोइंग टू द डॉक्टर विद द प्रॉब्लम, डॉक्टर ट्राइज टू डायग्नोज द डिसीज एंड देन गिव्स द मेडिसिन, और पता करता है और मेडिसिन देता है. फॉर ऑल दीज पर्पसेस नाउअडेज डॉक्टर्स आर यूजिंग कंप्यूटर्स ऑल्सो. कंप्यूटर के हेल्प से भी वो डिसीज को डायग्नोज करते हैं और उसके बाद दवाई देते हैं. देन सेकेंडली चिल्ड्रन, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ, KEEPING, keeping record, 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 keeping record of the patients, 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 keeping record of the patients. Then next we have preparing, PREPARING, preparing medical, 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 REPORTS, reports. So children, these are the purposes why we use computers in hospital. So let us read these points and understand. At hospital मतलब hospital में the computers are used for what computers are used in hospital? Firstly children, helping the doctors to diagnose the diseases. Helping, डॉक्टर की मदद करता है. The doctors to diagnose का मतलब to find out, पता करना the diseases. If some patients are going to the doctor find out the problem or disease using the computer. Helping record of the keeping record of the patient. जितने भी patients डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर के, अपनी समस्या लेकर के, तो डॉक्टर वहाँ पे उसका रिकॉर्ड रखता है. मतलब हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल में उसका रिकॉर्ड रखा जाता है. उस रिकॉर्ड को हम कंप्यूटर के थ्रू ही मेंटेन करते हैं. तो यहाँ पे कहीं कोई भी चीज़ जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते हैं अपने प्रॉब्लम्स के साथ या अपने और किसी काम के लिए. जैसा कि अभी हमने स्कूल में बात किया, स्कूल में भी बहुत सारे लोग होते हैं तो उनके रिकॉर्ड हम रखते हैं. स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, ऑफिस में उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका रिकॉर्ड हम रखते हैं. या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे बहुत सारे लोग जॉब करते हैं या फिर किसी काम के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उन लोगों के आने जाने का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, नाम रखा जाता है, किस लिए आए, कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है. तो हॉस्पिटल में भी बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे बीमार लोग आते हैं, बीमारी लेकर के उन सब
के रिकॉर्ड को हॉस्पिटल वाले मेंटेन करते हैं और ये मेंटेन कंप्यूटर के थ्रू ही होता है. तो द रिकॉर्ड आर मेंटेन यूजिंग द कंप्यूटर ओनली. एंड लास्टली चिल्ड्रन, preparing medical report. If you are going to the doctor, doctor is finding out the problem, आपका प्रॉब्लम का पता लगाता है. अब प्रॉब्लम पता करने के बाद वो आपको मेडिसिन देता है, वो आपको दवाइयाँ देता है, तो और मेडिकल रिपोर्ट तैयार करता है. तो जो आप मेडिकल रिपोर्ट तैयार करता है वो तैयार करने के लिए we need a computer. For preparing the medical report also we need a computer, and for printing the receipt also we need a computer. तो जो मेडिकल रिपोर्ट तैयार होती है उसके बाद जो आप दवाइयाँ लेने जाते हो उसके रिसीट के लिए भी वी नीड अ कंप्यूटर. मेडिकल स्टोर से जब आप दवाइयाँ खरीदते हो दैट टाइम ऑल्सो वी नीड अ कंप्यूटर. सो विद दिस चिल्ड्रन वी हैव come to the end of the video. We will read remaining part of the chapter in our next video. Till then, go through the chapter, learn the topics and revise what we did in our today's video. Come again in the next video. We will meet once again in the next video. Till then, thank you.